Good morning, students. In this new lecture, we will start first order kinetics. Last lecture में हमने zero order kinetics किया था. Zero order reactions are the reactions in which the rate of reaction is independent of the concentration of reactant. And first order kinetics or first order reactions are the reactions in which the rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration of reactant. Means you can say is directly proportional to the concentration of reactant. Like we have a reaction A to B and A is reactant, B is product. So this is the rate R K A raised by 1. So this is the first reaction for first order kinetics. 1 means the order of reaction is 1. Now in A to B, if the time is T0, the concentration is A naught. A naught is the initial concentration of a reactant. Okay. So when the time is 0, initial concentration is A naught. B की concentration 0 because अभी reaction शुरू नहीं हुआ. At time T, concentration of A become 80. So you can say, what is your AT? Concentration of A at time T, किसी भी time पे. Suppose X moles are decomposed, or you can say X moles of A that convert into B. There is X here, like X moles of A convert into B. तो अगर A naught में से X minus हो जाएंगे, ये आ जाएगा AT के equal. That is AT. AT is the concentration of A at time T equal to T. So AT equal to A naught minus X. Okay. What is X? X is the amount of A which convert into B. तो अगर A X react करता है, consume होता है, तो B की amount कितनी बनेगी? X. What is BT? BT is the concentration of B at time T. That is equal to X. Okay. Now we will write the kinetic formula for this rate constant के लिए. dx upon dt equal to r, that is the rate of reaction, change in concentration by time, that will be equal to minus change in concentration of A by T. Change in concentration, what is the concentration of A? Square bracket, that is equal to A naught minus X. Okay, so you can write it like this, like dx upon A naught minus X, ये dt इस साइड चला गया, k dt बन गया. इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to x, 0 to t. इसमें k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा. dt का t होता है इंटीग्रेशन. रेंज जो है वो 0 से t जाएगी. ये देखिए, इसका नेचुरल लॉग ln, दैट इज नेचुरल लॉग a naught minus x. रेंज इसकी 0 से x चली जाएगी. k कांस्टेंट हो गया. t की जो है वो 0 to t. तो ये माइनस नेचुरल लॉग a minus x प्लस नेचुरल लॉग a, बिकॉज x पहले x पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे. ठीक है. तो अब इसमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस. तो ये माइनस को उधर ले जाओ, प्लस हो गया. तो एंटी लॉग दिस नेचुरल लॉग a naught minus x इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस kt. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई. इसी को लॉग की फॉर्म में, log base 10 में हमें चेंज करना है. तो log base 10 में करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे ये एक रिलेशन होता है दोनों में, ln ex इक्वल टू नेचुरल लॉग e, बेस उसका ये है 2.303 log base 10x. क्लियर. तो अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग को, तो इससे हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.303. तो ये बन गया हमारा log a naught minus x इक्वल टू log a naught minus kt अपॉन 2.303. ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई. इसमें लॉग की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ लॉग की वैल्यूज है आपको वैसे याद रखनी है, तो जो आप कैलकुलेशन जो है वो फास्ट कर सको. मैंने 4 वैल्यूज लिखी है. ये 4 वैल्यूज आप जो है log 7 भी लिख सकते हो, 0.85 होता है. तो ये वैल्यूज आप जो है वो याद रखोगे. log 7 0.85. log 2 की वैल्यू हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर 0.3. अगर आपको 2, 3, 4, 5,
7 इसकी मिनिमम वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगी तो फटाफट से कैलकुलेशन हो जाएगी। 3 का 0.48, 4 का आ जाएगा 0.6, 5 का 0.7 और 7 का आ जाएगा 0.85। ये आपको याद रखनी है, ये यूज होगी। अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये फॉर्मूला। इसमें से हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ए नॉट दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, इधर आके माइनस हो जाएगा के टी। ओके, ठीक है। के टी के आगे क्या है, हमारा साइन है नेगेटिव का। तो अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा नेगेटिव ए नॉट माइनस एक्स प्लस ए नॉट, अब ये प्लस हो गया के टी। दिस इज लॉग ए बी, ये नेगेटिव में है तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा ए नॉट। अगर हम इसको ऐसे कंबाइन करते हैं, लॉग का रिलेशन लगा दें, इक्वल टू के टी। ओके, तो लॉग नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के टी आ गया। इसमें से अगर हम टी लिख लें, सॉरी के रेट कांस्टेंट निकाल लें, तो ये आ जाएगा 1/t नेचुरल लॉग ए नॉट ऊपर, ए नॉट माइनस एक्स नीचे। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है नंबर 4। उसके बाद इसी को बेस 10 में कन्वर्ट करना है हमें, तो क्या क्या बन जाएगा, k इक्वल टू 2.303t लॉग ए नॉट माइनस एक्स। ये आपका बन जाता है फार्मूला नंबर 5, जो मैक्सिमम जो है वो यूज होगा। अब नेक्स्ट है कुछ और रिलेशंस। अब जो ये रिलेशन है हमारा दिस, इससे हम आगे क्या कर सकते हैं, हम लॉग को उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा ए नॉट माइनस एक्स। नेचुरल लॉग जो है वो उधर चला गया तो ये क्या बन जाएगा हमारा इस साइड ई रेज पावर के टी। तो इसी से ही हम ये भी लिख सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए नॉट ई रेज पावर के टी, सॉरी प्लस का के टी। तो ये एक नया फार्मूला बन गया आपका, है ना। इसी में से आगे हम इसको, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें से, तो ए नॉट जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो हम x लिख सकते हैं इसमें से, दैट इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस ई रेज पावर के टी। सो ये आपका फार्मूला बन जाता है 6। इसी में से ही बिकॉज आपका जो ए नॉट माइनस एक्स है ये चीज, ये किसके इक्वल थी, ए टी, तो ई रेज पावर के टी, ये आपका फार्मूला बन जाता है 7। क्लियर। सो दीज आर दी सम रिलेशंस। यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, अब ठीक हो गया। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जिनके बेस पे फर्स्ट ऑर्डर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ग्राफिक बेस होंगे, कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें से मेजर ये रिलेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको टाइम दिया है तो रेट कांस्टेंट निकालना है। ऊपर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, नीचे आपकी ए नॉट माइनस एक्स मीन फाइनल कंसंट्रेशन है। कई बार रिएक्शन के अंदर आपको दिया होगा 80% रिएक्शन इज कंप्लीट, तो इसका मतलब है ऊपर आप 100 लोगे, नीचे आप लोगे 20, बिकॉज 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ए नॉट माइनस एक्स मतलब ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे आपकी फाइनल कंसंट्रेशन आएगी। ये फार्मूला जो है ये हम ज्यादा यूज करेंगे, इनिशियल और ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी, जितनी भी कंसंट्रेशन टी पे बन रही है, ठीक है। इसके साथ ही है हमारा अल्फा की वैल्यू,
that is degree of dissociation alpha. Alpha is equal to x upon a naught. What is x? X is the amount which is decomposed to B, which is dissociated. Number of moles which are dissociated, which is converted to B. मैं बोला था what is x? जितनी amount A की B में change होगी, that is x. Means number of moles of A change into B. नीचे initial number of moles. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस e रेज पावर माइनस kt. तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस e रेज पावर माइनस kt. ये रिलेशन बनता है. ये आपका फार्मूला बन जाता है 8. और ये जेईई मेन में पूछा भी गया था. ठीक है. रेट वर्सेस टाइम की बात करें, रेट वर्सेस टाइम की बात करें तो रेट किसके इक्वल था? इक्वल टू के ए नॉट ई रेज पर माइनस के टी. ये वाला रिलेशन है. तो ये फार्मूला आपका बन जाता है नंबर 9. क्लियर. इसके बाद अब हमारा बचा क्या है? लाइफ टाइम एंड हाफ लाइफ. 2 फार्मूले और आएंगे, वो भी कर देते हैं. लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन. लाइफ टाइम का मतलब होता है जिसमें रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है. इसको लिखते हैं टी एल टी. कंप्लीट का मतलब क्या है? आपकी ए टी क्या हो जाए? 0. ओके. तो ए टी की जगह पे 0 पुट करेंगे. तो ये ए नॉट फॉर्मूला था. ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज पर माइनस के टी. ठीक है. ये फॉर्मूला हमने 7th जो किया था रिलेशन, उसी में से लिया है. तो ई रेज पर के टी इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस के टी. अगर 0 है कब? व्हेन टाइम अप्रोचेस इनफिनिटी. So theoretical lifetime of first order reaction is infinite. मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होगी. So this is very important point. जो theoretical हमने कैलकुलेशन की, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो रिएक्शन है वो theoretically कभी भी खत्म जो है वो नहीं होगी. So when e raised पर माइनस के टी 0 लेंगे तो भी t that approaches infinity. ठीक है. So theoretical lifetime of first order kinetics or first order reaction is infinite. आगे बात करते हैं हाफ लाइफ की. हाफ लाइफ होती है the time in which the concentration of reactant that is reduced to half. Okay. Concentration of reactant reduced to half means concentration of AT that is half of initial concentration. और x किसके इक्वल है? ए नॉट बाई 2 की. इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जो उसमें चेंज हो जाए. तो रेट कांस्टेंट क्या था भाई? 2.303 बाई टी लॉग ऊपर ए नॉट नीचे ए नॉट माइनस एक्स. तो इसमें वैल्यू पुट कर दें. ए नॉट एक्स की वैल्यू पुट कर दें ए नॉट बाई 2. तो क्या बन जाता है रिलेशन? ये 2.303 बाई टी लॉग है ना. ऊपर क्या है? ए नॉट. नीचे क्या बन गया? ए नॉट बाय 2. तो ये 2 आ जाएगा सब काट के. तो के जिसके इक्वल आ गया 2.303 बाय टी लॉग 2. लॉग 2 बताया था 0.3 होता है. तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ. अब ये टी को अगर हाफ लेना है, सो टी को अब क्या लेंगे हम? हाफ लेंगे. तो यहां से ही टी हाफ ले लेते हैं. ये बन जाएगा 2.303 इंटू 0.3 बाई के. तो ये बन गया 0.693 बाई के. सो ये रिलेशन आपका बन गया हाफ लाइफ के लिए. तो ये आपका फार्मूला हो गया नंबर 10.
कि टी हाफ जो है दैट इज इक्वल टू 0.693 बाई के मैक्सिमम यूज करेंगे। अब इस केस में आप देख सकते हो फॉर्मूले से कि टी हाफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, फॉर्मूले में कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं है, तो टी हाफ जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जीरो ऑर्डर में था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन इस केस में जो टी हाफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दो फार्मूले हम इसमें मैक्सिमम यूज करेंगे, बाकी जो फार्मूले हैं उनका जो यूज है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होगा। एक तो मैंने ये बताया था और दूसरा हम यूज करेंगे टी हाफ का फार्मूला। तो ये दो फार्मूले हैं, दे विल बी मैक्सिमम यूज फॉर फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now the graphical representation, there are total 8 graphs of first order kinetics. First is the concentration versus rate. As we know that for first order reaction R is equal to K concentration of A. So when the concentration increase, rate will increase because rate is directly proportional to concentration. So the graph will be like this. Okay. Second is time versus rate. Now we have a formula like R is equal to K A naught e raised per minus KT, ये फार्मूला था। तो हमने रेट वर्सेस टाइम ले लिया, तो रेट वर्सेस टाइम जो है वो कैसा ग्राफ होगा, दैट विल बी लाइक दिस। कंसंट्रेशन डिक्रीज, रेट डिक्रीज होगी जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो रेट विल डिक्रीज, सो दिस पॉइंट दैट इंडिकेट के ए नॉट, दैट पॉइंट इंडिकेट के ए नॉट, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट क्या होगी, कम होगी, बिकॉज किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी, लेकिन टाइम बढ़ाओगे तो रेट कम होगी। थर्ड है हमारा टाइम वर्सेस नेचुरल लॉग 80। तो नेचुरल लॉग 80 वर्सेस टाइम अगर हम देखें तो उसकी स्लोप जो है वो माइनस के इक्वल आ जाएगी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, स्लोप रिप्रेजेंट करेगी माइनस के को, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया, बिकॉज log 80 किसके इक्वल था, ए नॉट ई रेज पर माइनस के टी। तो अगर हम दोनों में ये फार्मूला था हमारा कि 80 इक्वल टू ए नॉट ई रेज पर माइनस के टी, नेचुरल लॉग लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा के टी, ठीक है। तो आप देखो किसमें दिया, log 80 इस साइड ले लिया, टी जो है वो इस साइड ले लिया टाइम, स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी माइनस के, इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग ए नॉट के, क्लियर। फोर्थ, अब इसी को लॉग की फॉर्म में लेंगे तो अब कर्व सेम ही बनेगी, बस यहाँ पे उसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा लॉग ए नॉट, स्लोप क्या आ जाएगी अब that will be minus k by 2.303। लाइक इसी फार्मूले को आप चेंज कर दो लॉग की फॉर्म में, तो लॉग के फॉर्म में ये फार्मूला क्या बन जाएगा log 80 log a naught माइनस के टी पॉइंट 2.303। अब यहां से देखो क्लियर, log 80 यहां ले लिया, t इधर ले लिया, स्लोप किसके इंटरसेप्ट इसके इक्वल आ गया, और स्लोप किसके इक्वल आ गई माइनस के बाय 2.303। पांचवा कर्व, इसमें है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन थी यहां, इसको क्या लिखेंगे A0,
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। यही है ए नॉट, सॉरी दिस इज ए टी, ए नॉट ई रेज पर माइनस के टी, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी, इसको आप ऐसे बना दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम अल्फा। अब टाइम अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस ई रेज पर माइनस के टी, तो ऐसा कर्व बनेगा अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई रेज पर माइनस के टी। यहां पे अल्फा 1 है, अगर अल्फा 1 है तो नीचे वाला पॉइंट जो है टाइम वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट दी एल टी, बट इन दिस केस यू कांट फाइंड दी एल टी इनफाइनाइट बिकॉज लाइफ टाइम इज इनफाइनाइट इन दिस केस, है ना। लास्ट का हमारे पास है टी हाफ ए नॉट। टी हाफ और ए नॉट का कर्व जो है वो ऐसे आएगा बिकॉज टी हाफ का जो फार्मूला है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आती, इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो इसलिए उसका ये फार्मूला हो जाता है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ ग्राफ थे जिसमें से जे में प्रॉब्लम ज्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट थिंग इज कि ऑल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी है आपको जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हो, वो सारी की सारी एग्जांपल इसमें हैं। सारी की सारी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में आती है। ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ और डिके of bacteria, that also follows first order kinetics. Inversion of cane sugar, that also follows first order kinetics. Inversion of cane sugar का मतलब आपके पास cane sugar है C12H22O11, इसमें वाटर डाल देंगे, ये सुक्रोस है, ठीक है, प्लस वाटर कर देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये क्या बन जाता है C6H12O6, दो मॉलिक्यूल, एक फ्रैक्टोस एक ग्लूकोज। तो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है, ये मान लो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये फ्रैक्टोस मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज डी है, फ्रैक्टोस एल है, लेकिन एल की अमाउंट ज्यादा है, तो ओवरऑल डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो है वो लियो में चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं इन्वर्शन। इन्वर्शन मीन्स दी डेक्स्ट्रो चेंज इनटू लियो और लियो चेंज इनटू डेक्स्ट्रो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें आती है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। जैसे कोई भी आपके पास एस्टर है CH3COOC2H5, इसमें इसका हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक मीडियम में, तो ये एसिटिक एसिड और इथेनॉल बनेगा, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट है इक्वल फ्रैक्शन और परसेंट will react in equal time interval. Equal time interval में रिएक्शन जो है इक्वल परसेंटेज जो है वो कंज्यूम होती है। जैसे 100 से 90% जाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। 100 से अगर 90% जाते हैं किसी भी रिएक्शन में तो 10 मिनट लगते हैं। तो 90 से फिर उसका 10%, जैसे मान लो 100 पे है, पहला 10% में 10 मिनट लगते हैं, नेक्स्ट 10% में भी 10 मिनट लगेंगे, 10% में लगेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 81। 90 का 10% होगा 9,
है ना, 9 कम हो जाएगा। नेक्स्ट के 10% पे फिर जो है वो 10 मिनट्स लगेंगे। तो लेकिन 81 का 10% हो गया 8.1, तो ये 72.9 बचा। ऐसे इक्वल परसेंटेज टाइम इक्वल ही लेगा। जीरो ऑर्डर से थोड़ा डिफरेंट है, उसमें क्या था कि परसेंटेज अगर कोई भी 10% कम करना है टाइम सेम ही लग रहा था। इसमें नहीं है ऐसा, क्योंकि उसमें था कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, वो जीरो ऑर्डर था। ओके, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेफ्ट आफ्टर equal time interval फॉर्म जीपी, उसमें था एपी। जैसे मान लो इसमें है टाइम 0, तो कंसंट्रेशन ए 0, टाइम टी तो कंसंट्रेशन ए नॉट ई रेज़ पर के टी। What is the difference? E raised per kt. Then if time is 2t, then rate become a naught e raised per 2 kt. Again the difference is e raised per kt. So it is a GP. Third point tha like T half is independent of A naught and T, initial concentration and time। मान लो 100 ग्राम सब्सटेंस है, ये 50 ग्राम में चेंज हो गया, ये बन गया इसका T हाफ। सपोज करो T हाफ 10 मिनट है, आगे ये 25 हो गया, अगेन टी हाफ जो है वो 10 मिनट ही रहेगा। आगे ये 12.5 ग्राम हो जाता है, अगेन टी हाफ जो है वो 10 मिनट ही रहेगा। कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। इसमें इस रिएक्शन में देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन है 100 ग्राम, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है 50, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है 25। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन टी हाफ दैट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक।